جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج میری 7ویں دفعہ ہے کہ میں یہاں اڈیالہ اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آج بھی جو ہے مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ پرسوں جو واقعہ ہوا میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، وہ انتہائی قابل مذمت ہیں۔ اسلامی معاشرے میں اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی، اور ہماری مشرقی روایات ہیں، ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے عورت ذات کی عزت کرنی ہے، لیکن بدقسمتی سے غیر سیاسی عورتیں جو صرف اور صرف یہاں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آتی ہیں، جن کو ناحق قید کیا گیا ہے اور ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، ان کی تشویش بجا ہے کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو جو ہے آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، اسے نہ کسی پولیٹیکل بندے کو، نہ کسی وکیل کو، اور نہ ہی اس کے فیملی ممبران کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہ کس حالت میں اندر ہوں گے۔ تو میرے خیال میں بہنوں کو، پولیٹیکل ہمارے جو مشران ہیں، ان کو، ڈاکٹرز کو اور وکیلوں کو ملنا چاہیے۔ میرے ساتھ کورٹ کے آرڈرز ہیں، مجھے اس کے باوجود ملنے نہیں دیا جا رہا۔ پھر جو ملنے تو ویسے بھی نہیں دیا گیا ان کی بہنوں کو، لیکن ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، ان کو سڑک پر گرایا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ تو میرے خیال میں جو جعلی وزیر اعلیٰ ہے، جس طریقے سے بھی آئی ہیں پنجاب کی، وہ بھی ایک خاتون ہے، اس کو اس اقدام پر شرم آنی چاہیے۔ بحیثیت عورت یا بطور عورت اس کو دوسری عورت کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ خواتین عمران خان صاحب کی بہنیں اور ان کی اہلیہ، یہ غیر سیاسی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ان کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے تو اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی بھی یہاں پر تا حیات نہیں رہنے والا، یہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اگر غیر سیاسی عورتوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو پھر وہ سیاسی ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے پھر اگر کسی نے کچھ کیا تو پھر عورت کارڈ میرے خیال میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے تو چوری بھی نہیں کی، انہوں نے پاکستان کا پیسہ بھی نہیں لوٹا، ان کی باہر جائیدادیں بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی ہے۔ پھر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی بھی دوسری حکومت ان پر کیسز کرتی ہے یا ان کو گرفتار کرتی ہے یا ان کے ساتھ جو ہے آئین اور قانون کے دائرے میں جو سلوک کرتی ہے، تو میرے خیال میں پھر عورت کارڈ کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا کہ وہ کھیلیں، پہلی بات۔ دوسری بات، میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، جس طرح آپ سب کو میں نے بار بار بتایا ہے کہ جو بھی آئینی اور قانونی راستے تھے وہ تمام میں نے اپنائے۔ میں نے سب سے پہلے وفاقی حکومت، پھر صوبائی حکومت، ان کو لیٹرز لکھے کہ میری ملاقات ہونے دی جائے، انہوں نے نہیں کرنے دی۔ پھر میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی، مجھے 3 ججز نے آرڈرز دیے کہ آپ ملے اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے، لیکن یہاں پر جو ہے اس دن اس 3 ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا اور مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ، اس کو خط لکھا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے 3 دفعہ سپریم کورٹ کے جج آنریبل یحییٰ آفریدی صاحب کو 3 دفعہ کال کی، کوئی کال کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس سے ملنے گیا، 1.5 گھنٹہ مجھ پر وہاں پر انتظار کروایا گیا، لیکن اس کے باوجود مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو جس طرح پرسوں میں نے کچھ سوال کیے تھے، آج تمام میڈیا کے ہمارے جتنے بھی صحافی برادری ہے ان سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آج آپ سب نے اس سوال کا جواب مجھے دینا ہے، اور میں آپ سب کو انشاءاللہ تعالی آج جو ہے دیکھوں گا کہ تمام آئینی اور جمہوری راستے میں نے اپنائے ہیں اور مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو، ان کی لیڈرشپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ملنے دیا جائے؟ میرے ساتھ ہر بار میں جہاں آتا ہوں کچھ بولتا ہوں، یہ کوئی نہ کوئی جو ہے مجھ پر FIR درج کر دیتے ہیں۔ پہلے جو ہے FIA کی طرف سے FIR درج ہوئی،
फिर जो है इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुझ पर घटिया और बेहुदा इल्ज़ामात लगे। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सूबे का और मेरा पासपोर्ट इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मतलब मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। ओ बेगोड़ो, पाकिस्तान से बाहर वो लोग जाते हैं जिन्होंने कौम का पैसा लूटा हो, जिन्होंने पाकिस्तान में आइन और कानून को पामाल किया हो। मैं तमाम तर इक़दामात आइन और कानून के दायरे में रहकर कर रहा हूँ, तो मुझे किस चीज़ का खौफ है? मैंने ना पाकिस्तान को छोड़ना है, ज़िंदा रहकर भी इधर रहना है और मर के भी इधर दफन होना है। पाकिस्तान मेरा है और ये इंशाअल्लाह ताला मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। लेकिन इनकी नीयत और इनकी जो इक़दामात हैं एक फेडरेटिंग यूनिट के ख़िलाफ़, वो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि इनका ये रवैया है, तो फिर हमें बताया जाए कि हमें आगे क्या करना है। शुक्रिया। सीएम साहब, आपने जो है वो कल एक बड़ा दावा किया जिसको सोशल मीडिया पे हर कोई अपने अंदाज से ले रहा है। हम चाह रहे हैं कि आप उसकी वजाहत कर दें। मुझे ये था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो क्या बड़ा हो सकता है? क्या वफाक के खिलाफ दोबारा पीटीआई जो है वो अपनी तहरीक या मार्च शुरू करेगी, या इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है? क्या लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि फेडरेशन से हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा अलहदगी का जो ऐलान कर दे? तो आप खुद वजाहत कर दें ताकि वो कन्फ्यूजन खत्म हो। देखिए, नहीं, दूसरी बात, वक्त आने पर तो सबको पता लगेगा, लेकिन इन्होंने जो किसी के कहने पर जो सवाल किया है वो खतरनाक है। पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान मेरा है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान से अलहदगी का जो सोचेगा वो गद्दार होगा। हमने पाकिस्तान में रहकर इन चोरों लुटेरों को पाकिस्तान से भगाना है, या पाकिस्तान में आइन और कानून के दायरे में रहकर इनको सजा दिलवानी है? पाकिस्तान जो है वो रहेगा सदा। और वफाक की तरफ कोई है मतलब है दोबारा जिस तरीके से कोई? देखिए, वो तो मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि मुझे बताया जाए, मेरी सहाफ़ी बरादरी मुझे बताएं आज तमाम टॉक शोज में, मीडिया पर, पॉडकास्ट में, व्लॉग्स में, कि इससे आगे मुझे क्या करना चाहिए। योम सियाह के हवाले से क्या प्लान है? और यही बता दें कि जो कल इलेक्शन कमीशन में आपको तलब किया गया है, इस हवाले से क्या करें? अच्छा, ये जो योम सियाह है वो तमाम दुनिया को पता है कि उस दिन 26 नवंबर को जो गोलियां चली वो निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन पर, जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड था, उन पर चली हैं। तो वो तो योम सियाह है ही, और ये जो है उम्र भर याद रखा जाएगा। सिर्फ 26 नवंबर नहीं, 9 मई भी जो है याद रखा जाएगा। मुरीदके में जो हुआ वो भी याद रखा जाएगा। और क्योंकि जामा हफ्सा को अभी भी लोग याद कर रहे हैं, कबाइली अजला में जो हुआ उनको अभी भी लोग याद कर रहे हैं, तो ये किसी से भूलेगा नहीं। कश्मीर में जो हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ये हमेशा याद रहेगा। तो इस वजह से जो है हम कहते हैं कि ये बंद कमरों में जो लोग बैठकर गलत पॉलिसियाँ बनाते हैं और फिर बंद कमरों से ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमेशा मुल्क को कौम को नुकसान देते हैं। अच्छा, कल जो मेरे बयान को गलत रंग दिया गया, सियाह को सबाक से हट कर दिया, वो तमाम मीडिया पर शाया किया गया, वहाँ पर जो है मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फलाने को सपोर्ट करना है या फलाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है, मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। मैंडेट पर डाका गैर आईनी काम है, और जो गैर आईनी काम करता है उस पर आइन से बगावत का पर्चा होता है आर्टिकल 6 के तहत, और आर्टिकल 6 में जो सजाएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसको जो है गलत रंग दिया गया। हम जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर अपने लिए अपने हक मांग रहे हैं, तो हम जो है वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो आइन और कानून के दायरे में। इसको क्वेश्चन करने दे वन बाय वन। उसको बड़े कानून के दायरे नजर आ रहे हैं। लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, उसकी तरफ इलेक्शन कमीशन को कुछ याद नहीं है, उसको केपीके के इलेक्शन में याद आ रहा है। देखिए जी, आप मैं तो ये कह रहा हूँ कि मजबूत इदारे जो हैं वो मजबूत रियासत की अलामत होती है, और हमें ज़रूरत है मजबूत इदारों की। वहाँ पर जो हो रहा है वो तमाम लोग देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। वहाँ पर जो है लोगों को, जिस तरह हमारे अहमद हज़र साहब की ट्वीट आई है कि लोगों को जो है अपने हुजरों पर बुलाया जा रहा है, उनको डायरेक्शन दी जा रही है कि ऐसा करना है। लेकिन मैंने कल के बयान में कहा है कि धांधली नहीं होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि उमर अयूब साहब की जो एहलिया है उसका शहर नाज
उमर अयूब नाम है और उसका इंतखाबी निशान जो है वो केतली है। आपने केतली को वोट देना है, किसी और को वोट नहीं देना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है वो चीज़ मेरे गले डाल दी है। सोहेल अफरीदी साहब ये बताइए, सोहेल अफरीदी साहब ये हो गया जी, हो गया। सोहेल अफरीदी साहब आप ये बताइएगा, सोहेल अफरीदी साहब देखें, सबसे पहली बात ये है कि आपकी ये इंतशार वाली बात की मैं शदीद अल्फाज में मुसम्मत करता हूँ और इस पर जो है मैं खफा हुआ हूँ, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब ने ऐसी तरबियत की है कि हम जितने भी एहतजाज करते हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहकर पुरअमन मुज़ाहमत करते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं वफाक के साथ बैठ जाऊं। सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा जिसके साथ आप बैठना चाहें, पाकिस्तान में वो बंदा हमें बताएं जिसके पास इख्तियार है। कैसा कोई बंदा जिसके साथ आप यार मैं तो जमहूरी बंदा हूँ। मैं कौमी असम्बली गया, मैं सूबाई असम्बली गया, मैं चीफ जस्टिस के पास गया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैं हाई कोर्ट गया, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया। इसके बावजूद अगर इख्तियार आप लोग समझते हैं कि किसी और के साथ है, तो ये तो मैंने आप लोगों को आज दे दिया। आप मुझे रात को बता दें किसके साथ है।